કબ્રસ્તાનમાં માણસો માટે ફક્ત પેદલ એટલે રાહગીરો માટેની જગ્યા આવવા જવાનો રસ્તો રહેશે, પણ વ્હીકલ કરવા માટેની કોઈ જગ્યા નહીં રહેશે. 15-20 દિવસમાં પ્રોપરલી બધા લોકોને કોન્ફિડન્સમાં લેવામાં આવશે, કોન્ફિડન્સમાં લેવાની આ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવશે. वक़फ़ कमेटी ये नहीं चाहती कि वहाँ बंगला वहाँ फ्लैट बनाए तो फ्लैट मार देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. डेफिनेटली इंसानियत के नाते सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, मगर कोई इंसानियत सामने इंसानियत दिखाता तो सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए. इंसानियत नहीं दिखा रहा तो कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली बात आती है. बहुत पुराना हो 1969 वाला, उसको आगे का 69 वाला हो गया, तू जाके आगे लड़, मैं तेरे पीछे पीट के खड़ा हूँ. કોર્પોરેટર સાથે બી મારામારી થઈ છે. શું આખો વિવાદ છે, શું મુદ્દો છે અને શું કહેવા માંગુ છું? સૌથી પહેલા તો હું એ કહીશ કે અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટી ઓલરેડી 4 તોડા કબ્રસ્તાન મેનેજ કરે છે. 4 તોડા કબ્રસ્તાનમાં ન્યુસન્સ એટલે એન્ક્રોચમેન્ટ એટલું બધું વધી ગયું છે કે જે ઇસ્લામના અમે દરિયામાં જે લોકો રહે છે બધા સમજી શકે છે કે ન્યુસન્સ કેટલું બધું વધી ગયું છે. એટલે ન્યુસન્સ દૂર કરવા માટેનું પગલાં તરીકે વસ્તુમાં લોકોને જે પણ કોન્ફિડન્સમાં લઈ શકે, દૂર કરી શકાય એના માટેની અત્યારે પ્રોસિજર ચાલી રહી છે. અને અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીએ લાસ્ટ જે ઇસ્યુ ડિસાઇડ કર્યો હતો ત્યારે એવું નક્કી કર્યું હતું કે 4 તોડા કબ્રસ્તાનમાં આ બધું ન્યુસન્સ કેમ વધી ગયું છે. એનું રીઝન એક જ વસ્તુ છે કે લોકો ગમે તેમ વ્હીકલો લઈને જાય છે, ગમે તેમ કરીને જનાવરો પાડે છે, બધી વસ્તુ કરે છે. એટલે અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીએ ડિસિઝન લીધું 25મી તારીખે ડિસિઝન લીધું. 26 એપ્રિલના દિવસે દિવ્ય ભાસ્કરમાં અને ઓલરેડી ગુજરાત ટુડેમાં એક એડવર્ટાઇઝ આપી હતી. અને એડવર્ટાઇઝ આપીને એક મેસેજ આપ્યો, એક જાહેર ચેતવણી આપી, જાહેર નોટિસ આપી હતી કે આજ પછી 4 તોડા કબ્રસ્તાનમાં માણસો માટે ફક્ત પેદલ એટલે રાહગીરો માટેની જગ્યા આવવા જવાનો રસ્તો રહેશે, પણ વ્હીકલ કરવા માટેની કોઈ જગ્યા નહીં રહેશે. એ વસ્તુ એક મેઇન હતી. અને આપે જે વાત કરી એ પ્રમાણે અનફોર્ચ્યુનેટલી સમજો કે એનું એક સિક્વન્સ હું પહેલાં તો બતાવીશ કે 26મી તારીખે અમે એડવર્ટાઇઝ આપી, 5 તારીખે મુદત આપી. 5 તારીખે મુદત આપ્યા પછી અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇન્ફોર્મ કર્યું કે 5 તારીખ પછી હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે. તો પોલીસ સ્ટેશનમાંથી અમને એવો મેસેજ આપવામાં આવ્યો કે ભાઈ ઇલેક્શન હોવાથી તમે 5 તારીખે ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરો, એના કરતાં થોડું લેટ કરો. તો અમે 10 તારીખ નક્કી કરી, 8 તારીખે પોલીસ સ્ટેશનમાં લેટર આપ્યો અને 10 તારીખે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના માટેની વાત સ્ટાર્ટ થઈ અમારી. 10 તારીખે અમે ત્યાં ગયા. ત્યાં જવા માટેનું લોકોને એવું લાગ્યું કે કેટલાક લોકો વિઘ્ન સંતોષી લોકો હોય એવો મેસેજ આપવા ટ્રાય કર્યો કે કબ્રસ્તાનની ટોટલી બંધ કરી દેવામાં આવે છે. આજ પછી કબ્રસ્તાનમાં નમાઝીઓ નમાઝ પઢવા દેવામાં નહીં આવે. કબ્રસ્તાનમાં લોકોને જ્યારત કરવામાં એટલે જે દર્શન કરવા જાય છે અમે જ્યારત કરવા માટે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. ફૂલ ફાતિયા માટેનો કોઈને જવાબ દેવામાં ના આવે. તો સ્વાભાવિક વાત છે, આવી વાત સાંભળીને કેટલાક લોકો ઉશ્કેરાય. એટલે કેટલાક લોકો ઉશ્કેરાયા અને ઉશ્કેરાઈને મામલો બગડ્યો. એટલે મામલો બગડાતા સાથે સમજો કે વાત ટોળું હોય છે તો ટોળાને દિમાગ હોતું નથી. એટલે વાત એવી થઈ કે વાત બગડતા વસ્તુમાં કે સિચ્યુએશન થોડી આઉટ ઓફ કંટ્રોલ લાગી. એટલે પોલીસ ત્યાં આવી ગઈ અને પોલીસ સ્ટેશનમાં વાત થઈ. પોલીસ સ્ટેશનમાં વાત થઈ હતી, કેટલાક લોકો હાજર હતા. અમે લોકો ડિસ્કશન કર્યું પછી એ નક્કી થયું દરેક માણસો આ વસ્તુમાં એગ્રી છે કે 4 તોડા કબ્રસ્તાનમાં કોઈ દિવસ વ્હીકલ ના જવા જોઈએ. એ ડિસ્કશન દોરાનમાં એ વસ્તુ પરથી નક્કી એવું થયું કે આવાવાળા 15-20 દિવસમાં પ્રોપરલી બધા લોકોને કોન્ફિડન્સમાં લેવામાં આવશે, કોન્ફિડન્સમાં લેવાની આ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવશે. એ વસ્તુ કન્ક્લુડ થઈ. અનફોર્ચ્યુનેટલી કેટલાક લોકો એવા લોકો હતા કે જેમને વસ્તુમાં જજ્બાતી લોકો હતા, કોમના હમદર્દ હતા. એ લોકોને એવું ફીલ થયું કે આ વસ્તુ ખોટું થઈ રહ્યું છે અને ક્યાંક લોકો મોબોક્રેસી થ્રુ સાચી વસ્તુને દબાઈ રહ્યા છે. એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી એ વસ્તુમાં વાત વણસીને વસ્તુમાં થઈ છે. અને કેવું થાય છે કે હોય છે નાનો, લોકો એને એક્ઝાગરેટ કરીને મોટું દેખાડતા હોય છે. એટલે આજે એ અમારા માટે બધા ભેગા થવું પડ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇસ્યુને એવા મોટો એક્ઝાગરેટ કરીને દેખાડવામાં છે કે ઇસ્યુ થયો છે, ડેફિનેટલી ખોટું થયું છે એ પણ સાચી વાત છે. પણ જે વસ્તુને એનો મોબ છે ને સ્કેલ બતાડવામાં આવ્યો છે, સ્કેલ જરૂર કરતાં વધુ મોટો કરીને આપ્યો આવ્યો છે. અને ખોટું થયું છે, ખોટું છે, નાનું હોય કે મોટું હોય, ખોટું જ છે. ઓલરેડી અમે વસ્તુ 4 તોડા કબ્રસ્તાન માટે અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટી પહેલા દિવસથી માને છે કે કોઈ પણ દિવસે લો એન્ડ ઓર્ડરને ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર કામ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના થઈ શકે અને સમાજના લોકોને સાથે લીધા વગર કામ ના ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકે. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી કેટલાક લોકો એવા વિઘ્ન સંતોષી હોય છે, વેસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ વાળા લોકો હોય છે, એ વસ્તુને વાત ડાયવર્ટ કરે છે અને લોકોને ગુમરાહ કરે છે. એટલે વસ્તુમાં વસ્તુ વણસી છે. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર ઉપર હુમલો થયો છે, એ કઈ આ બાબતને લઈને શું કહેવા માંગો? હું કેવું છે, કોંગ્રેસ બીજેપી મીમ કે વસ્તુમાં પડવા નથી માંગતો. અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટી એનું પોતાનું કામ ક્લિયર કટ જોવા માંગે છે. અને અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટી આ વસ્તુમાં બિલીવ કરે છે. કબ્રસ્તાનનો એહતરામ રહેવો જોઈએ, કબ્રસ્તાનનું રિસ્પેક્ટ રહેવું જોઈએ. એ વસ્તુ માટે અમે 100% આગળ વધવા માંગીએ છીએ. અને એના માટે અમે કોંગ્રેસીઓ છે, બીજેપી વાળા હશે કે કોઈની પાસેથી દરેકનો સાથ સહકાર લેવા માંગીએ છીએ કે દરેક માણસ છે
અને દરેક માણસના દિલમાં એક હમદર્દી છે કે કબ્રસ્તાનમાં કદી ખોટું થવું જ ના જોઈએ. અને કબ્રસ્તાનમાં જેવી રીતે આ જ વસ્તુનો કે મેં અત્યારે કાલે એક ભાઈને જ વાત કરી કે ઓલરેડી કબ્રસ્તાનમાં સમજો ને કે ઘણું મોટું કબ્રસ્તાન છે, એમાં 10 પોઈન્ટ છે આગળ બહાર આવવા જવાના. 10 પોઈન્ટ હોવાથી ત્યાં દારૂ પણ કેટલી બધી વેચાય છે, ડ્રગ્સનું કામ થાય છે, લોકો ખોટા ધંધા કરે છે. એ ધંધા ના થાય એટલા માટે જ વકફ કમિટીએ ડિસિઝન લીધું છે કે રિસ્ટ્રિક્ટેડ એન્ટ્રી કરવી. અને એન્ટ્રી 4 જ રાખ. અમે તો પહેલા 2 જ એન્ટ્રીમાં બિલીવ કરતા હતા, પણ ઓલરેડી કેટલાક લોકો અમને સમજાવ્યું અને અમને લાગ્યું, અમે પર્સનલી ત્યાં વિઝિટ કર્યા પછી લાગ્યું કે બીજી 2 એન્ટ્રી પણ ખુલ્લી રાખવી જોઈએ. પેડેસ્ટ્રિયન માટે 2 એન્ટ્રી અને બીજી 2 એન્ટ્રી પેડેસ્ટ્રિયન વિથ પાર્કિંગ, એમ થઈને 4 એન્ટ્રી તો પેડેસ્ટ્રિયન એન્ટ્રી જ રહેશે. વ્હીક્યુલર એન્ટ્રી કોઈ દિવસ કબ્રસ્તાનમાં નહીં બને. એ અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીનો બહુ ક્લિયર કટ એજન્ડા છે અને એ એજન્ડા પર આજે નહીં તો કાલે આગળ વધીશું. કદાચ આવાવાળા માહોલમાં થોડું એન્વાયરમેન્ટ બગડ્યું છે, અમે બધાને કોન્ફિડન્સમાં લઈશું, બધાને સમજાવીશું અને સમજાવીને આ વસ્તુમાં અમે આગળ વધીશું. એ અમારું પુરાનો અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીનો ક્લિયર કટ એજન્ડા છે. આ કમિટીએ એવું કીધું કે કબ્રસ્તાનની અંદર કેટલાક એન્ક્રોચમેન્ટ છે, બરાબર, એ છે. અને બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે હવેથી ત્યાં અંદર માત્ર પેડેસ્ટ્રિયન લોકોને જવા દેવામાં આવશે, તો આગામી દિવસોમાં કેવું આપનું વલણ રહેશે ચારતોડા કબ્રસ્તાનમાં? તો વલણ બહુ ક્લિયર કટ છે પહેલા દિવસથી અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીનો. કબ્રસ્તાનનો ehતરામ રહેવો જોઈએ, રિસ્પેક્ટ રહેવો જોઈએ, એ વલણ પહેલા દિવસથી આજ સુધીનું છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી સમાજના કેટલાક લોકો જ છે જે વસ્તુ એને બગાડે છે. એટલા માટે અને એની સાથે મેં અત્યારે જે રીતે વાત કરી, ઓલરેડી વાત કરી એ પ્રમાણે સમજો કે ભાઈ ડ્રગ્સની બધી પણ ઘણી બધી વધી ગઈ હતી, દારૂની પણ બધી વધી ગઈ હતી. એ વસ્તુને રોકવાનું જરૂરી છે. એના સિવાયની વસ્તુ એ થઈ છે કે ઓલરેડી અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીએ 1969માં આજથી 55 વર્ષ પહેલા ગુડ ફેથમાં એ ટાઈમે પણ રાયટ્સ થયા હતા, કેટલાક લોકોને રહેવા માટે જગ્યા આપી હતી. એ જગ્યા રહેવા માટે એને આપી હતી ગુડ ફેથમાં, ફક્ત શેલ્ટર તરીકે. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ લોકો જગ્યા ખાલી ના કરી, એટલે એ વખતના ટ્રસ્ટીઓ ડિસિઝન લીધું કે ચલો વાંધો નહીં, કોમના માણસો તે હાલાતના મારેલા છે, એ લોકોને રહેવા માટેની જગ્યા આપીએ. એટલે એ ટાઈમે અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટી એ લોકો જોડે ભાડું લેવાનું ચાલુ કર્યું. ભાડું લઈને ચાલુ કરતા ક્યાંક સાચા સાથે ખોટું કંઈક થતું જ હોય છે. એ વસ્તુ એટલે 1998માં અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીના ટ્રસ્ટીઓને રિયલાઇઝ થયું કે આ વસ્તુ ભાડું લેવું જે થઈ રહ્યું છે, ખોટું થઈ રહ્યું છે. એના નામના હેઠળ બહુ ઘણી બધી બદીઓ વધી રહી છે. એટલે 1998થી અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીએ ₹1 ભાડું લીધું નથી. એટલે કેટલાક લોકો છાતી ઠોકીને એમ કે છે અમે ભાડુઆત છીએ. રેકોર્ડ પર ભાડુઆત હતા 98 સુધી. 98 પછી એકે માણસ ભાડુઆત નથી. લીવ અને લાયસન્સી છે, ટેકનિકલ વર્ડ્સમાં લીવ અને લાયસન્સી છે, ભાડુઆત તો નથી જ. 98 પછી ₹1 કોઈ આપેલો હોય તો અહીંયા એને પ્રૂફ આપી જાય. ખોટું જૂઠું બોલવામાં આવે છે કે અમે ભાડું આપીએ છીએ, એ સરાસર જૂઠી વાત છે. પોઈન્ટ નંબર 1. બીજી જૂઠી વાત છે વકફ કમિટી વાળા અહીંયા એને પૈસા આપી જાય છે અને લોકો 25 વાર 50 વાર જગ્યા લઈ જાય છે. એ પણ 100% ખોટી વાત છે. વકફ કમિટીને બદનામ કરવા માટેના લોકોના ધંધા છે અને જે લોકો ખોટા ધંધા કરવા માંગે છે એ લોકો જ ધંધા કરે છે. આ વસ્તુ એ લોકો ખોટી રીતે વકફ કમિટીને બદનામ કરી રહી છે. એ લોકોએ સમજવાની જરૂર છે કે ખોટા આક્ષેપો ના કરે. આક્ષેપોના વસ્તુમાં અમે અત્યારે ત્યાંથી પોલીસ સ્ટેશનમાં અમારી સામે એક ભાઈ બેઠા હતા, એમને મને આક્ષેપ કર્યો. એટલે મેં ભાઈને કીધું એક કામ કરો, તમારો આક્ષેપ તો સાચો હોય તો અમે અત્યારે રિઝાઇન કરીશું અને ના સાચો હોય તો તમે ₹1 લાખ વકફ કમિટીમાં ડોનેશન આપશો, પ્રૂવ કરો. અધરવાઇઝ આ વસ્તુ અત્યારે પાછા લો. લોકો બોલવા માટે ગમે તે બોલી લે છે, વિચારતા નથી. બોલતા પહેલા ચેક કરવું તો જોઈએ. ચેક કર્યા વગર મન ફાવે એમ લોકો બોલતા જાય છે. લોકોને કહીએ છીએ તમે સેન્સિબલ લોકો છો, સેન્સિબલ લોકો તો ચેક કરો, સચ્ચાઈ જાણો અને સચ્ચાઈ તમે આવીને અમારી સાથે ડિસ્કસ કરો. તમારી પાસે પ્રૂફ હોય તો લઈને આવો, પ્રૂફ લો, તમે અત્યારે રિઝાઇન કરી દઈશું. પણ પ્રૂફ નથી તો તમે ₹1,00,000 ડોનેશન આપો. જૂઠું બોલવાની તમારી સજા છે અને તમારે સમજવાની છે. તમારી સમજદારી સલાહિયત આના પર વાત આવે છે. જૂઠું બોલો ના, સમાજને ગુમરાહ ના કરો. એ વસ્તુ અમે ઓલવેઝ દરેક લોકોને કહેતા હોઈએ છીએ. આજે એન્ક્રોચમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે, હવે દૂર કરવામાં આવશે. કેવી રીતે આખું કબ્રસ્તાનને આગળ વધારવામાં આવશે? જો એન્ક્રોચમેન્ટ એક ડિફરન્ટ પ્રોસેસ છે. અત્યારે વાત ડાયવર્ટ થઈ ગઈ છે. એન્ક્રોચમેન્ટ માટે ઓલરેડી અમે અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીએ વકફ બોર્ડની અંદરમાં મોર ધેન 200 કેસીસ કરી ચૂક્યા છે કલમ 54 ના હેઠળ. ઓલરેડી એ લોકોની 2 થી 3 વખત સુનાવણી થઈ ગઈ છે. એમાંથી 6 માણસોનો ઓર્ડર પર છે. અમે લીગલ પ્રોસિજર ઓલરેડી કરી જ રહ્યા છીએ. અત્યારે એક ગ્રુપ એવું હતું જે લોકો મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી લોકોને સમજાવીને, લોકોને પૈસા આપીને કંઈક એમને એ વસ્તુ દૂર કરવાની જે વાત કરી રહ્યા હતા, એ લોકો એમનો ઉપર રીતે કામ કરી રહ્યા હતા. એ લોકો એમની રીતે કન્વિન્સ કરવાની ટ્રાય કરી હતી. પણ અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટી લીગલ રાહ પર 100% બિલીવ કરે છે અને એના માટે ઓલરેડી અમારી લડાઈ ચાલુ જ છે. એ અમારી લડાઈ માટે અમારે આપણે ગુજરાત વકફ બોર્ડમાં અમારા કેસીસ ચાલે છે. અમે વકફ બોર્ડ માટે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ કે આવો મામલો ન્યુસન્સ બની જાય છે. ન્યુસન્સ એટલું બધું બની જાય છે કે જેનો લોકો સમાજ ખોટો ફાયદો ઉપાડે છે. એટલે વકફ બોર્ડને પણ અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે આ બધું ડિસિઝન વહેલી તકે લેવામાં આવે જેથી આ વસ્તુ મામલો બગડે નહીં.
કેમ કે ઓલરેડી આપણી સિસ્ટમ એવી થઈ ગઈ છે કે આજે એક માણસ ઇલીગલ કરે છે એના માટે અમે કેસ કરીએ છીએ, ડિસિઝન આવતા હતા છેલ્લા આઈ થિંક અમે 7-8 વર્ષથી આ બધી પ્રોસિજર કરીએ છીએ અને ડિસિઝન આવતું નથી, એનો લોકો ખોટો ફાયદો પાડે છે. એટલે ગવર્મેન્ટે પણ કામ કરવું જોઈએ કે ફાસ્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરાવવું જોઈએ. ફાસ્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન નથી કરી રહ્યા એટલા માટે જ આ વસ્તુ ખોટું થઈ રહ્યું છે, લોકોને મોકો મળી જાય છે. અલ્તાફ ખાન અને તેની ટીમ તમારી સાથે જ્યારે મદદમાં હતી, અત્યારે અલ્તાફ ખાન અને તેની ટીમ ભાગી રહી છે. હાલ પોલીસના સર્ચ ઓપરેશનમાં બપોરે કેટલાક છોકરાઓની ધરપકડ કરી, કેટલાક મહિલાઓની ધરપકડ કરી. તેને લઈને સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટી કેટલી મદદમાં પહોંચશે? જો સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટીએ પહેલા દિવસે જ કીધું છે ઇલીગલ કામમાં અમે કોઈને સપોર્ટ નહીં આપીએ. સાચું કામ છે પણ ઇલીગલ તરીકેથી કોઈ દિવસ કામ નહીં થાય. બરોબર છે? એના પરિવારવાળા તો કહ્યા કે સર અમે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં સામેવાળા પર હુમલો કર્યો. જો લો એન્ડ ઓર્ડર હાથમાં લેવું ખોટી વસ્તુ છે. એના માટે સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટીને કોઈને કહેતું નથી અને એના માટે અમે કોઈને સાથ સહકાર આપવા માંગતા જ નથી. વકફ કમિટી ફક્ત આમાં થયેલું કામ જે પણ થઈ રહ્યું છે, સારું કામ થઈ રહ્યું છે, એમાં જે પણ અમને સાથ સહકાર આપવા માંગે છે એનું અમે સાથ સહકાર લેવા માટે ઓપન માઇન્ડ છીએ. हिंदी में कर लेंगे. જ્યાં શહેરે ખામોશ હતું કે નથી? એટલે કબ્રસ્તાન શહેરે ખામોશ હતું એનો મતલબ કે કબ્રસ્તાન ને આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. શહેરે ખામોશ એક ઉપનામની તમે વાત કરો છો, એ રીતે હું સમજ્યો છું તમે કહેવા જે માંગો છો. यानी कब्रिस्तान था. कब्रिस्तान 1969 में भी कब्रिस्तान ही था. कब्रिस्तान आज से पैदा हुआ नहीं है. जिसने वक्फ किया था उसकी नीयत बहुत क्लियर कट थी कि ये कब्रिस्तान के पर्पस से वक्फ किया हुआ है. उस दिन भी कब्रिस्तान था, वो भी मैंने आपको अभी जो पहले ही बताया कि कब्रिस्तान है और ता क़यामत तक कब्रिस्तान रहेगा. कब्रिस्तान में कोई भी इंसान कोई जात की भी बिल्डिंग नहीं बना पाएगा. ये भी लोग गलतफहमी में लोगों को मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि कब्रिस्तान में कहीं बिल्डिंग बनने की वाली बात होती है. अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कभी भी कब्रिस्तान में किसी को बिल्डिंग बनने की इजाजत नहीं देगी. पॉइंट नंबर 1. किसी को लगता है कि यहाँ किसी आदमी की ये जगह पे गलत नियत है तो मैं इतना बोलूंगा कि कल से वहीं से कब्रिस्तान अपने कब्र बनाने का चालू करें, दफन करने का चालू करे तो उसकी जो नियत है उसकी नियत टूट जाएगी. ये कोशिश करने वाली बात है. खोटी खोटी गलत बातें ना करें. बहुत क्लियर कट एजेंडा है. जहां लगता है किसी को कि ये जगह आइडेंटिफाई हो रही है और ये जगह में कब्रिस्तान नहीं, लोग की नियत खराब है, वहीं से कल से कब्र मैयत दफनाने का स्थान करें. क्योंकि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि मैयत यहाँ दफनाई जाए. कब्रिस्तान पूरा कब्रिस्तान है. किसी को भी इंसान कभी भी कहां जाए और मैयत दफना सकता है. तो जिसको भी लगता है कि ये जगह कभी किसी की नियत खराब है, उस जगह पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो ऐसे इंसान को मतलब अपने मुहिम करने चाहिए कि वहीं से कब्रिस्तान की अपने मदफन करने की कल से अभी आज से शुरू कर देना चाहिए. तो जिससे मतलब लोगों की नियत आप जिस तरह से लगा कि लोगों की शायद नियत गलत हो, नियत सक्सेसफुल नहीं हो सके. और ये मैं आपको जो बोलता हूं उसके अलावा अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो लोग सिर्फ 10 फुट बाय 10 फुट का मकान बनाते हैं उसको रोकती है. तो आप यूं सोचते हो कि कोई मतलब में गलत बिल्डिंगें बनाएगा तो उसको वक्फ कमेटी छोड़ देगी. उसी दिन पुलिस स्टेशन में एक बंदे ने हमारे को यूं बोला कि मैं आपको मकान के प्लान पास करवा देता हूं, आप ये रहने वाले कब्रिस्तान वाले को रहने वाले को मकान के यहाँ दे दीजिए. मैंने कहा आप गलत बोल रहे हो. कब्रिस्तान के अंदर GDCR बोलते हैं, गवर्नमेंट का लॉ है. लॉ के तहत कब्रिस्तान के अंदर एक बिल्डिंग बनने की इजाजत नहीं मिल सकती. तो जो इंसान को गलत फहमियां लोग बताते हैं वो कॉन्फिडेंटली बोलता है मैं डोनेशन ला के दूंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा और कब्रिस्तान में रहने वाले को मकान दो. मैंने कहा वो बात हम लोग तकसीम करते नहीं, वो बात पे कभी हम मानेंगे नहीं और गवर्नमेंट भी नहीं मान सकती. आप गलत इलीगल काम कैसे कर सकते हो? इलीगल काम में हम साथ नहीं दे सकते. उसको फिर बहुत मगजमारी करता है. उसको मैं बोलता था एक काम करो, प्लान पास करके लेके आओ, फिर हमारे साथ बात करो. जो गलत बात है समझने की कोशिश नहीं करते हैं, मतलब नादान है, उसको क्या समझाएंगे हम लोग. मगर हम लोग इतना क्लियर कट आप लोगों के समझने की जरूरत है. कब्रिस्तान में कभी भी कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती, उसकी इजाजत गवर्नमेंट दे नहीं सकता और इलीगल काम की इजाजत सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी नहीं दे सकती. सर एक और सवाल है, जैसा कि कब्रिस्तान के अंदर जो बांधकाम है, गैरकायदे से जो बांधकाम है, वो चीज़ तो एक साइड है. कुछ ऐसे फिरके भी हैं जो दरगाहें बना के उस दरगाहों के अंदर फिर कव्वाली के प्रोग्राम करते हैं शहर खामोश के अंदर. तो उस चीज़ के ऊपर आज दिन तक वक़फ़ कमेटी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया. और दूसरा सवाल ये है कि कब्रिस्तान के अंदर जो बांधकाम का मटेरियल अंदर एंटर हो रहा है और बांधकाम हो रहा है, तो उस टाइम पे वक़फ़ कमेटी क्या कर रही थी? इसीलिए ये गलत बांधकाम ना हो, इसीलिए डोर पे रिस्ट्रिक्शन करना है कि एक भी व्हीकल अंदर एंटर ना हो. आपने जो बोला वो इसी का एक पार्ट ऑफ द एक्शन है. बिल्कुल आपकी बात सही है कि मतलब में उसमें मतलब में क्या होगा, अंदर मटेरियल जाता है तो गलत कंस्ट्रक्शन काम हो जाएगा, होता है ना. ये सब नियत सोच के ही वक्फ कमेटी ने डिसीजन लिया हुआ है कि किसी को एक व्हीकल अलाउड नहीं करना है. पैदल कब्रिस्तान में मस्जिद है, 2 मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान में मतलब मैं जब अपने हर इंसान जाता है कि ज़ियारत करने के लिए, फातिहा दरूद करने के लिए जाना चाहता है, वो पैदल जा सकता है. उसके लिए कोई व्हीकल लेके उसके अपने किसी अम्मा की खबर के लिए मतलब बाइक लेके जाने की जरूरत नहीं है. अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का क्लियर कट एजेंडा है
आप जो बोल रहे हो वो बात को आगे करते हुए अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ये क्लियर कट मानती है कब्रिस्तान में व्हीकल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल हम लोग हर एक इंसान को कॉन्फिडेंस में ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों से बात की हर एक का यही कहना है कि आपकी बात ये सच है। इज़ाम भाई, आप जो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अल्ताफ बासी नाम का एक गुंडा और उसके लोग कब्रिस्तान के अंदर घुस जाते हैं। पिछले कई महीनों से लगातार ये खबरें आई अखबारों में, सोशल मीडिया पर नाम के साथ आया कि घुसकर उसने लोगों के साथ में मारपीट की, उसके गुंडों ने, अल्ताफ बासी ने और सब ने। तो क्या वक्फ कमेटी की या वक्फ बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी इसमें? अब देखो प्रैक्टिकली मैं बोलूं कि लॉ एंड ऑर्डर पर्सनल लेवल पे जो जिम्मेदारी बनती है पुलिस की बनती है। वक्फ कमेटी सिर्फ इतना काम कर सकती है, हमारे पास इतना पावर नहीं कि हम किसी को जाके रोक सकते। और अल्लाह माफ करे अभी मैं जाके रोक रहा होता तो मेरे को बोलते कि आप उनकी तरफ से लड़ रहे हो। अभी किसी ने एफआईआर करी मेरे नाम से कि मैंने उसको पाइप मारी है। कितना झूठ लोग बोल रहे हैं। अब आप बोलते हैं ऐसी चीजों में हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करने जाओ तो ऊपर से बदनाम हो जाएंगे और लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। तो ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते। आप जो सोचते हो एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट करें, हम लोग ने बहुत क्लियर कट एजेंडा बनाया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे अगर जो कुछ भी काम होता होगा वो काम करेंगे और लॉ एंड को डिस्टर्ब करते हुए जो काम हमारे को सपोर्ट करने जाता है उसका सपोर्ट लेंगे। मगर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब होगा वैसा कोई भी काम कभी हम लोग को तस्लीम नहीं। अच्छा सर, जैसे कि अभी जो बसाने वाले जो लोग थे वक्फ कमेटी के, जो भी प्रताड़ित थे उनको लाके कब्रिस्तान में बसाया गया उस वक्त के लिए, आपकी नज़रों में वो लोग गलत थे? जो बसाने वाले थे वो लोग गलत थे या जो खाली करवाने वाले हैं वो लोग गलत हैं? देखो एक चीज समझ लो, शरीयत के हिसाब से जो होता है इस्लाम में वो चीज जारी होगी। कब्रिस्तान में किसी ने अच्छी नीयत से 69 में घर रहने के लिए मकान दिए, उसमें नियत का सर था। मैं आपको बोलता हूँ अच्छी नीयत से। नियत का उसमें सवाल ही नहीं। कब्रिस्तान हराम है, अंदर रहना हराम ही है, तो उसमें नियत का तो कोई लेना देना ही नहीं। उस टाइम पे वो लोग ने क्या नियत सोची, शेल्टर की तरह कि भाई हालात के मारे लोगों को रखने के रहने के लिए जगह दे। मगर आज 55 साल में उसका हालत क्या हो चुकी है। अच्छी नियत से किसी को हेल्प करने की कोशिश की उस जमाने में, उस ट्रस्टी उसमें नियत नहीं देखी जाती ना, क्योंकि बात मजहब की थी उस टाइम। आपकी बात सच है, वही तकलीफ वो आती है ना। अच्छा ही करो तो भी लोग गाली बोलेंगे। मैं हंसते हंसते मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि एक फिल्म में कादर खान का बहुत अच्छा डायलॉग है कि मतलब डबल स्टैंडर्ड कि पॉलिटिशियन टाइम पे जल्दी पहुंचता है, हेलीकॉप्टर में तो बोलता था हेलीकॉप्टर में चला गया, गोवा पैसे गोवा आवाम का बिगाड़ रहा है, और बोलता है कि हेलीकॉप्टर पहन के नहीं जाता, ट्रेन में जा रहा है तो बोल रहा है कि नहीं देखो कितना इतने लोग तकलीफ में आएंगी, उसको मतलब मैं उस टाइम पे जल्दी जाना चाहिए। कौम आज ऐसी हो चुकी है, इधर भी करो तो भी गाली मिलेगी, उधर भी करो तो गाली मिलेगी, तो क्या काम करने का। तो इसके लिए सलाहियत के तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से कितनी चीजें का रिजल्ट किया जाता है और उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है। आज के हालात में पास क्या हुआ था उसको एनालिसिस करने से, पोस्टमार्टम करने से कोई कुछ रिजल्ट होना है। आज के हालात में क्या बेस कर सकते हैं और कौन कर सकता है उस पर गौर किया करने की बात करें। पास में पास को हम चेंज कर सकते हैं, भूतकाल को हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें क्या कोई बात करने की जरूरत है। उसको बात करने का कोई टाइम वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, आज हम क्या कर सकते हैं उस पर गौर करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। सर पूरा जो गुजराती का आपने बोला है वो उसे बताइए, इसलिए पीसी रखी है, क्या पूरा मामला है चाटकोट? फिर से जरा मैं समझा आपने क्या कहना चाहते हैं। कब्रिस्तान का क्या पूरा मामला है जिसके लिए आज पीसी रखी है, पूरा वो बताइए। देखो पहले 4 तोड़ा कब्रिस्तान अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का कब्रिस्तान है। वो तकरीबन 1,10,000 स्क्वायर यार्ड का कब्रिस्तान है। यानी कब्रिस्तान के स्केल में मैं कितनी बार लोगों को समझाता हूँ कि लोगों को खबर नहीं होती 1,10,000 स्क्वायर यार्ड की जगह की कितनी है। वहाँ जगह जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कितना बड़ा स्केल है। हम लोग 200 वार या 500 वार के प्लॉट में मकान बना के बंगला बनाते हैं। मकान या बंगला बनाते हैं, बंगला कहूँगा, मकान नहीं कहूँगा, मकान तो 25-50 वार में बन जाता है। 500 वार में बंगला बनता है, उसकी जगह 1,10,000 वार है। तो सोचे कितना बड़ा स्केल है। जुआपुरा का कब्रिस्तान सिर्फ 15,000 वार की जगह में बना हुआ है, उससे करते कितना गुना कब्रिस्तान है वो सोचे। अब वो बड़ा कब्रिस्तान जिसने वक्फ किया उसकी नीयत को भी सोचे। आज से 100 साल पहले किसी ने वक्फ किया, कौन सी नीयत से किया? अहमदाबाद के मुसलमानों को आने वाले दौर में कब्रिस्तान की जगह की तकलीफ ना पड़े, वो नीयत से वक्फ किया। और आज वो नीयत के हिसाब से लोग रहने के लिए थोड़ी जगह दी जाती है। और शरीयत में बहुत क्लियर कट एजेंडा किया, ये भाई साहब ने और कर बताया कि किसी को मतलब अपने कब्रिस्तान को रहने के लिए जायज है ही नहीं। तो वो सब चीजों के नजर पे गौर करते हुए काम करना है। और अनफॉर्चुनेटली जो भी हो चुका है, मैंने थोड़े वक्त पे बोला कि पास पेपर ने पोस्टमार्टम ना करें, अनफॉर्चुनेटली कोई चीज हो चुकी है। उस वक्त पे ऑफिशियल तकरीबन 103 या 114 लोग थे, उनको उस टाइम पे रहने की जगह दी थी। आज मोर देन 600 से ज्यादा फैमिली रह रही है। 114 में से भी कितने लोगों को ऑलरेडी वटवा में जगह दे दी थी। उस जमाने में लोगों को मतलब मैं 45-50 लोगों को शिफ्ट किया था, उनको जगह दी थी, वो जगह चले जाना चाहिए। उसमें से भी कितने लोग वापस आ गए। जो लोग अभी मतलब में रह रहे थे उनको 10 फुट बाय 10 फुट की जगह दी थी, वो आज मतलब में कम से कम 100, 500, 1000 फुट की जगह को कब्जा करके बैठे हुए। वो नीयतें सबकी गलत है। और वो नियत गलत करने की वजह से कब्रिस्तान के अंदर जो लोगों को अच्छे नियत से रखा था वो एहतराम से रहे होते,
कब्रिस्तान की बेहुरमती नहीं कही होती। यानी कितनी बार मेरे को बोलने में भी शर्म आती, कितनी बार होता है कि वहां पे जाओ तो क्या होता है कि कितने लोग कब्रिस्तान उनके टॉयलेट के मतलब में पानी की नाली बना के कब्र के अंदर खाड़कुआ बना के रखते, खाड़कुआ का भी खर्चा नहीं करते, नाली में पानी छोड़ देते। वहां पे जाओ तो उनके बच्चे टॉयलेट करने में बैठे होते हैं ओपन में, वहां पे जाओ तो यूज कॉन्डम पड़े होते हैं, सैनिटरी नैपकिन पड़े होते हैं। क्या है कब्रिस्तान है? आप देख के आप लोगों का भी खून खौल उठेगा कि ऐसा कब्रिस्तान ऐसा होना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम लोग चाहते हैं जिसने डोनेट किया है वो उसने ये नियत से कब्रिस्तान डोनेट किया था कि हम उसका मतलब एहतराम ना रखें। बात इतनी बिगड़ चुकी है, उसकी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के हाथ स्टेप लेना पड़े। काफी लोग हमारे को कहते हैं कि दूसरे सब कब्रिस्तान में व्हीकल बंद नहीं है, दूसरे सब कब्रिस्तान में कम से कम कब्रिस्तान तो है, लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। आप उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप यहाँ की गलती को मतलब उसके दूसरे कब्रिस्तान के साथ में कैसे आप लाएगा समझ करते हैं? कब्रिस्तान की बेरुमती इतनी सब हो रही है, 4 टोड़ा कब्रिस्तान को बहुत बुरी हालत में लोगों ने कर दिया हुआ है। इसी वजह से कितने लोगों ने ये चीज को मुहिम करी, उन्हें सफाई चलाया। जब उन्हें सफाई चलाई तो जब उनको पता चला कि कचरे में क्या क्या निकला और ये कचरे में ये सब निकल के देख के उनका दिल खोल उठा और उसके बाद वो हमारे पास आए, हमारे से डिस्कशन करा। हमने बहुत क्लियर कट एजेंडा बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे हुए हमने ऑफिशियल उनको लेटर दिया और ऑफिशियल लेटर देने में हर गाइडलाइन लिख के दी कि भाई इस तरह से आपके काम करना पड़ेगा, ये होगा, लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान है और सेम बात है, इंसान है, इंसान जज्बाती होता है, इंसान जज्बाती होता है, जज्बात में गलतियां करता है, तो किसी ना किसी लोगों ने गलतियां करता है, उसमें वक्फ कमेटी उसको तस्लीम नहीं करता, उसको तकसीम मानता नहीं है, मगर गलत है वो गलत है। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि मुसलमान हर वहां रहने वाला भी मुसलमान है और सफरर भी मुसलमान है, तो हर मुसलमान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस लेके हम लोग वक्फ कमेटी ये 4 टोड़ा कब्रिस्तान की जो मतलब में रिस्पेक्ट बेरुमती होती है उसको बचाना चाहते हैं। ये हमारा क्लियर कट एजेंडा है। रिजवान भाई ये बताइए, अब आप लोगों के पास में कानूनी विकल्प कौन कौन से मौजूद हैं? क्योंकि जब आप मैदान में जाते हैं तो आपके ऊपर ही FIR हो जाती है, तो कानून के रास्ते पर अगर जाते हैं तो क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? कानून विकल्प में आप देखें थोड़ा मान लो साहब। कानूनी विकल्प में तो सबसे पहले हमें वक्फ बोर्ड में ही हमारे जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ एक्ट लागू है, वक्फ कब्रिस्तान है, तो वक्फ के लिए हमें वक्फ बोर्ड की जो कानून है, वक्फ एक्ट है 1995 का, उसके अंदर 2013 में अमेंडमेंट भी हुआ। उस जो भी पूरा एक्ट है उसके मतलब उसमें कलम 54 है, जिसके तहत हमें वक्फ बोर्ड में अर्जी करनी होती है कि ये जो गैरकायदेसर दबाण है या तो गैरकायदेसर जो एंक्रोचमेंट है उसको आप दूर करिए। और जब वक्फ बोर्ड उसको मान लेती है कि ये गैरकायदेसर एंक्रोचमेंट है तो वक्फ बोर्ड खुद वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर दावा पेश करती है उनको खाली करवाने का, और वक्फ ट्रिब्यूनल में से ऑर्डर हो जाने के बाद कलेक्टर उसे खाली करवाता है। तो सर ये की प्रोसीजर है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। और 250 जितनी हमने जो अर्जियां हैं वो हमने डाली हुई है वक्फ बोर्ड के सामने, जिसकी सुनवाई चल रही है, उसकी नोटिस भी इश्यू हो गई। और अभी हमारे साहब ने कहा अब अभी ईद उल अज़हा आने वाली है, अब आप देखिए हर ईद उल अज़हा के अंदर जानवर बांधे जाते हैं, कब्रों पर जानवर बांधे जाते हैं। क्या ये सही है? ये सही तरीका है उन लोगों का कब्रों पर जानवर बांध के उनको बेचने का या गंदगी करने का कब्रिस्तान के अंदर? या अब ईद उल अज़हा आ रही है फिर ये कोशिश होगी, तो ये सब गलत हो रहा है। अब किसी ने पहले कुछ कर दिया या हो गया तो वो गलत चीज को दोहराया तो नहीं जा सकता, गलत चीज को कभी न कभी रोका जा सकता है, तो वो रोकने की कोशिश हो रही है, मुहिम हो रही है। और दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने पहले से बरसों से कर रहे हैं। कुछ बंदों ने जो 4 टोड़ा कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले थे, उन्होंने पहले PIL भी हाईकोर्ट में की हुई थी इन लोगों को खाली करवाने के लिए, और PIL के अंदर हाईकोर्ट ने कभी इनकी फेवर में जजमेंट नहीं दिया। एंक्रोचमेंट जितना भी है उनकी फेवर में, हाईकोर्ट ने यही कहा है कि आप लोग लीगल प्रोसीजर करके उसको खाली करवा सकते हैं, और उसके अंदर आपको जो पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए तो पुलिस का प्रोटेक्शन भी आप मांग सकते हैं। तो उस वक्त जब हुआ था 2011 में, तो जो भी बंदे यहाँ थे उन लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा था, लेकिन किसी वजह से पुलिस प्रोटेक्शन उस वक्त मिल नहीं पाया, तो वो मामला वहीं पर ठहर गया। तो ये लीगल प्रोसीजर सारे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये लीगल प्रोसेस में क्या लैंड ग्रैबिंग का मामला भी कुछ हो सकता है इसके अंदर? लैंड ग्रैबिंग का मामला कैसा है कि सर जब सिविल केस होती है ना तो कलेक्टर इसे लैंड ग्रैबिंग तरीके एंटरटेनमेंट नहीं करते, और अभी लैंड ग्रैबिंग का कायदा समझोगे, अभी हाईकोर्ट के अंदर लैंड ग्रैबिंग का कायदा को चैलेंज किया गया हुआ, तो इसके अंदर बहुत झड़पी यानी बहुत फास्ट डिसीजन भी नहीं आता। वैसे लैंड ग्रैबिंग के कायदे की बात अब आपने उठाई है
तो यहाँ साग गंजरी कब्रिस्तान है, उसके लिए वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमने वहाँ एक वो पूरा कब्रिस्तान कि एक बंदे ने पूरा कब्जे कर रखा था, तो उसको खाली करवाने के लिए हम लैंड ग्रैबिंग का हमने केस किया था, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इसलिए उसका कब्जा हमारे पास वापस आ गया, लेकिन उसमें डिसीजन नहीं हुआ कोई भी कलेक्टर से, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। जैसा सर कि अभी लोकसभा चुनाव के अंदर अमित शाह ये कह रहे हैं कि वक़्फ़ एक्ट को नाबूद कर दिया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है, तो जब वक़्फ़ एक्ट ही नहीं रहेगा तो ये कब्रिस्तान का मामला फिर आने वाले समय में कहाँ तक जा सकता है? देखो एक बात सुनो, कोई भी एक्ट रहे ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान का जो कानून है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, वो तो सारे मौजूद है, वो तो यहाँ से निकलने वाले नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो है ही, तो उसके तहत फिर काम करिए। अगर वक़्फ़ एक्ट निकल जाता है, कोई एक एक्ट रिपील हो जाने से दूसरे एक्ट काम नहीं करते, ऐसा तो होता नहीं है, तो दूसरे सारे बहुत सारे प्रोविजन है, सीपीसी है, सीआरपीसी है। इसको मैं इतना बोलूंगा टेक्निकल टर्म्स में, मतलब मैं माधव साहब से बता रहे, बेफिक्र लोग हो जाए। गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाने की कोशिश करेगी तो उसका एक डिफरेंट पहलू होता है, वो इन्हें ऐसा मत सोचे कि वक्फ की हर प्रॉपर्टी का मालिक गवर्नमेंट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी वो माना ना सोचे, पहले तो मतलब मैं उसको महफूज रखने की बात है। कब्रिस्तान हमारे पास रहेगा तो ये लॉ के लिए लड़ेंगे नहीं, मगर कब्रिस्तान ही महफूज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो पहली कोशिश अभी हमारी सबसे पहली कोशिश वो है कि हमारे वक्त जितने भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी, उसको महफूज कैसे रखा जाए, उसको पैसे रिकॉर्ड पे, वरना तो मतलब मैं कैसा होगा, ऐसा नासूर चीज होगी तो अमित शाह ले जाए, बीजेपी ले जाए, कोई उसका क्या फर्क पड़ने वाला है जब कौम के काम में नहीं आने वाला। तो यानी पहली नियत है कौम के काम के लिए कब्रिस्तान की तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, वो पहली हमारी नियत होनी चाहिए। कब्रिस्तान के अंदर चरस, अफीम, गांजा जैसी चीजें मिलती थी और वक्फ बोर्ड को मैसेज मिलने के बावजूद भी वहां पर बिकता रहा। इस पर वक्फ बोर्ड ने क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करी उनके ऊपर? बहुत कुछ है, यहाँ से हम लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं और मतलब में क्या होता है, जब पुलिस पहुंचती है उससे पहले लोग बाइक लेकर अंदर आया तो भाग जाता है। इसी वजह से हम लोग रोक रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन रोकने का वजन वही है कि अब सिर्फ दरवाजे सब बंद हो जाएंगे, 4 एंट्री रहेगी, तो 4 एंट्री पे पुलिस खड़ा हो जाएगा और व्हीकल अंदर होगा नहीं, तो उसको कम से कम बाहर आने का रास्ता तो एक ही रहेगा, 4 ही रहेगा। तो ये सब चीजों का हमारा मकसद फाइनली यही है कि मतलब में कैसा होता है कि हम लोग इश्यू को सोचते हैं, इश्यू का सॉल्यूशन नहीं सोचते। सिर्फ हमारे को क्या होता है, मजा आती है इश्यू के वजह सिर्फ बात करने का, और बात करके मतलब में रात पड़ जाती, फिर गाय के हम लोग अपने अपने बस बिस्तर में जाके सो जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि इश्यू को सॉल्यूशन कैसे लाया जाए और बेहतरीन तरीके से काम कैसे किया जाए। यानी हमारी कौम वही हो गई, हमारी कौम नहीं, सबको यही अभी इंटरेस्ट हो गया है, सिर्फ इश्यू खड़े करो, इश्यू में करो, टीआरपी लो, या उसको मतलब में इश्यू को सूझो और उसको आज मैंने बहुत अच्छा काम किया और खुश हो जाओ। भाई बहुत अच्छा काम कब अच्छा है, जब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। जब तक ये अपने अफीम, चरस, दारू बंद नहीं होगा कब्रिस्तान में, तो वहां तक का कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो सॉल्यूशन को नजर में रखते हुए ही हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ले रहे हैं। रिजल्ट भाई, सॉल्यूशन की बात है तो जितने भी अहमदाबाद में कब्रिस्तान है या औकाफ की जितनी भी जमीन है, जितनी भी हैं, ज्यादातर 2002 के दंगों के बाद आकर वहां पर लोग बसे थे। हर जगह पर पूरे गुजरात में तकरीबन ये मामला है। तो ऐसे में जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या सरकार से कुछ इस तरीके से डायलॉग्स नहीं किए जा सकते हैं? कब्रिस्तान खाली होने चाहिए, बिल्कुल वहां पर बेहुरमती हो रही है। मैंने खुद ने देखा कब्रों के ऊपर शराब के वहां पर ग्लास रखे होते थे, मैं खुद देखकर आया था ये चीजें। लेकिन वो लोग भी हैं तो इसी देश के, उनको आप बेघर तो नहीं कर सकते ना, उनका भी कोई औपचारिक उनका होना चाहिए ना इंतजाम उन लोगों का भी। देखो साहिल भाई, मैंने ऑलरेडी क्लियर कट बात की। अभी कब्रिस्तान के अंदर में 100 लोग ऑफिशियल 1969 में थे, 100 में से 50-45 लोगों को जगह दे दी थी, 55 रहे, तो 55 से बात होनी चाहिए कि 655 से बात होना चाहिए। अभी 655 घुस के बैठे हुए हैं, और वो 55 के साथ भी बात जब होगी जब वो 10 फुट बाय 10 फुट की बात करेंगे। बाकी आज मैं 10 फुट बाय 10 फुट में घुस जाऊंगा और फिर घुस के 1000 फुट पे कब्जा जमा के बैठूंगा, उस पर बात करूंगा, तो उससे बात नहीं होगी। वक्फ कमेटी का क्लियर कट एजेंडा है, जो लोग सच्चे हैं उनसे सच्चे तरीके से बात होगा और झूठे तरीके से उनसे बात ही नहीं होगा। सिंपल बात है। यानी वो ये आप ये सोचे, उसको एग्जैगरेट करा जाता है, बोला तकलीफ में है, पर तकलीफ में सिर्फ 55 है, और 55 में से भी 15, 20, 25 तो चले गई है, क्योंकि उनको साहब माल हो गए, उनको यहाँ तकलीफ पड़ती थी तो चले गए। यानी वो तकलीफ है, वो लोग को पिक्चर नहीं बताते कि जेन्युइन 30, 40, 50 है, 500 लोगों का टोला आ जाता है, तो क्या 500 लोग जेन्युइन है? तो ऐसे लोगों से कैसे बात कर सकते हैं? जेन्युइन लोगों डॉक्यूमेंट लेके हर बार उनको किया हुआ है, वक्फ कमेटी में आइए, आपसे बात होगी, आप सच्चा होगा तो आपके साथ बैठ के बात होगी। एक और 40 आए और 42 होंगे, 2 जन यहाँ नहीं आए होंगे तो भी उसकी डिसफेवर में जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हक पे बैठते हैं और हक पे काम करते हैं। जो जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन है या जो बड़ा इंसान है, जो अच्छा है, उसको फेवर होगी, ऐसा कहीं नहीं होगा।
जो इंसान हमसे डायलॉग करता है वो नहीं, जो हमारे रिकॉर्ड पे होगा, हर एक इंसान से बात होगी और हर एक इंसान से सॉल्यूशन होगा, वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। मगर आप बात कर रहे हैं कि जो लोग रिकॉर्ड पर होंगे उनके लिए आप बात करेंगे। नगरीय हॉस्पिटल में ये देखा गया था कि जो लोग रिकॉर्ड पर थे, जिनके पास में बहुत पुरानी 50 साल पुरानी सारी रिसिप्ट वगैरह सब थी, उसके बावजूद भी म्यूनिसिपालिटी ने उनको हटाया, तो उनके लिए क्या कुछ किया वक्फ कमेटी ने, वक्फ बोर्ड ने? नगरीय हॉस्पिटल का कब्रिस्तान का मामला अलग से है, क्योंकि जो वहाँ टीपी स्कीम रखी गई तो गवर्नमेंट ने वो कब्रिस्तान है वो कॉर्पोरेशन को अलॉट कर दिया। वहाँ जो भी डिस्प्यूट चलता है कॉर्पोरेशन और वक्फ कमेटी के बीच में, वो ऑनरशिप का डिस्प्यूट चलता है। तो कोर्ट के अंदर जो 2005 के अंदर दावा वक्फ कमेटी ने किया था कि भाई ऑनरशिप हमारी होनी चाहिए, कोर्ट ने फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा रखा है, टेम्पररी ऑर्डर किया है कि भाई जब तक ये अपील का निर्णय न हो तब तक वक्फ कमेटी इसका इंतजाम करेगी। और उसने साथ साथ में 2006 में एक ऑर्डर पास हुआ था कि भाई जो भी इलीगल एंक्रोचमेंट है उसको कॉर्पोरेशन को अधिकार दिया गया था दूर करने का। उसके लिए ये प्रोसेस हुआ है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग आगे लड़ रहे हैं और उसको जो भी है उसके बारे में जो भी हमारा जो कानूनी वकील है, हमारे जितने भी कानूनी लोग हैं वो इसके अंदर फाइट दे रहे हैं और पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसके लिए हम ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा इतना भी कहूंगा कि वो लोगों ने अंदर से किसी को नहीं निकाला, अंदर से कॉर्पोरेशन सिर्फ रोड पे एनक्रोचर में बैठे उनको एक्शन लेती है। कभी भी कब्रिस्तान में अंदर जाके किसी को ऐसा नहीं किया कि आप लोग इलीगल हो, क्योंकि ये जुडिशरी मैटर है, तो उस कॉर्पोरेशन भी वो एक्शन नहीं ले सकती। मगर क्या लोगों को वही कहते हो ना कि आधा से ज्यादा झूठ बताया जाता है। वो लोग जब रोड पे बैठते हैं, व्हीकल का एंक्रोचमेंट करते हैं, तो फिर वो लोग कॉर्पोरेशन एक्शन लेती है ना कि भाई आप रोड को मतलब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको जो जगह अंदर जगह थी उस पर काम करो। और फिर भी मैं वही कहूंगा कि वहां पे भी उनकी नीयत साफ होती तो उनको जगह जो अलॉट की हुई है वो जगह में ही बैठते। रिजवान भाई, ये अंदर जगह में क्यों जा रहे थे? कि ये जो अवैध कब्जा है इसको हटाया नहीं गया इतने सालों तक। सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी और गुजरात वक्फ बोर्ड, इन दोनों संस्थाओं के बीच रिश्ता कैसा है कि इतना वक्त हो गया और इस पर कोई काम नहीं हो पाया? अभी मालवा साहब ने आपको भी बताया ना कि जो ऑलरेडी हमारी लीगल प्रोसीजर चल रही है, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो फास्ट एप्लीकेशन अपने एक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मतलब मैं अब वो उसके लिए किसी को गवर्नमेंट अथॉरिटी इनडायरेक्टली, मतलब मैं जैसे ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट अथॉरिटी वर्ड राइट वर्ड नहीं है, और उसको हम लोग प्रेशर नहीं कर सकते आप जल्दी करो। यही लोगों को जो सच में जिसको फिक्र है तो 500 का टोकन लेके वक्फ बोर्ड पे जाना चाहिए और वक्फ बोर्ड को कहना चाहिए कि आप 1 दिन में डिसीजन दो या 15 दिन में डिसीजन दो, खुद तो डिसीजन दो। यानी जिसके सर पे लटकती तलवार है उसको तो पता चलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। यानी वो एक्शन किस तरह से प्रेशर किया जाना चाहिए, उसकी जगह उल्टा प्रेशर हमारे पे कर रहे हैं। हमारे पे प्रेशर ये कर रहे हैं, हमारे को मतलब मैं गलत केसों में गलते सीट रहे, यानी उनकी नियत अलग है कि ये वाली बात है। हमारे सबकी फाइनली आप सब यहाँ बैठे हो और जो कुछ भी जितने अच्छे लोग हैं, समझदार लोगों की सबकी एक ही नियत है, कब्रिस्तान रहना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। सिंपल एक बात है, हर एक कोई इंसान को ये चीज में बिलीव करता है। जैसे 3 सुविधा जो प्राथमिक है, बिजली, गटर और पानी। गटर की सुविधा उनके पास है नहीं, खार कुएं बना के वो लोग रह रहे हैं। बिजली की सुविधा उनको मिल चुकी है ऑलरेडी, सबके घर पे मीटर लगे हुए, मगर वो लोग कहीं ना कहीं साइकिलों पे, गाड़ियों के ऊपर पानी के 50 लीटर के 40 लीटर के कैरबे रख के लाते हैं और उसके अंदर उनका खुद का गुजारा करते हैं। तो अगर इन फ्यूचर अगर गेट बंद कर दिए जाएंगे तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि कब्रिस्तान तो छोटा है नहीं। मैं आपको बोलूंगा किस पे बीतनी चाहिए। आपके घर पे मैं आके जबरदस्ती रह जाऊंगा तो आप चाहोगे कि मैं अच्छी तरह से रहूं? नहीं, कहीं ना कहीं तो कहोगे कि नहीं आपको भूख लगी है खाना लो, नहीं आपको तकलीफ पड़ रही है आप ये करो। सोचो तो सही, आपकी हमदर्दी किसके लिए है? जिसको खबर थी ये कब्रिस्तान है, जिसको खबर थी कि वक्फ कमेटी ने उनको रहने की जगह नहीं दी है, किसी और के यहाँ जबरदस्ती घुसे हुए, उसके लिए हमदर्दी क्यों रखते हो? हमारे को हमदर्दी नहीं है, हमारे को हमदर्दी ये है कि वक्फ के लोगों ने ही उनको वहां पर बसाया है। देखो वक्फ के रिकॉर्ड में मैंने आपको अभी कह चुका हूं, आपने जो समझा हो, तो उस जमाने का रिकॉर्ड 114 का था एग्जाम्पल। वो रिकॉर्ड में से 45 लोगों को जगह दे दी थी, उसके बाद के लोग रहना चाहिए। आज कितने सब लोग हैं वहां पे जाओ तो 15, 20, 25 लोग तो दिखते नहीं है, उसमें से साहब मान लो जगह बेच के निकल गए, अपने जगह बेच के निकल गए, अपने जगह पे निकल गए, ऐसे काफी लोग हैं। हम लोग ने ये 200-250 का जब डेटा दिया, जब भी हमने सर्वे किया उसके बाद तो और दूसरे 100-200 और खड़े हो गए होंगे। तो ये कैसा है कि डेटा आज सर्वे करो, कल दूसरे नए बनते जाते हैं, ये वाली मामला बढ़ते जाता है। तो मतलब मैं इतना ही कहूंगा, ये क्या है सॉफ्ट कॉर्नर, डेफिनेटली इंसानियत के नाते सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, मगर कोई इंसानियत सामने इंसानियत दिखाता तो सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। इंसानियत नहीं दिखा रहा तो कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली बात आती है? वो कब्रिस्तान में
बहुत हालात का मारा है, रह रहा है, तो कम से कम मेरे पड़ोसी नापाकी करता हो तो रुकेगा? कब्रिस्तान में नापाकी मत करो, ऐसा तो कर नहीं रहा। कहता है नहीं नहीं भाई आओ, जगह खाली है, आप आओ, आपके भाई को लेके आओ, आपके भाई के बच्चों को लेके आओ, बच्चों को दहेज में देते कि भाई मेरी लड़की की शादी हुई तो तुम्हारे एक जगह मिल जाएगी। ऐसे भी केसेस होते हैं। ये कब्रिस्तान की जगह है कि दहेज में देने की जगह है? सर्वे करा है तो 10 साल पूरा जगह पट्टा है ना, बस कुछ हिस्सों में ही है। जनरल टैप और उन्होंने भी सुविधा के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन की हुई है, तो इस मामले में जो है वहाँ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी सुविधा के लिए। लेकिन वो वक्फ कमेटी ये नहीं चाहती कि वहाँ बंगला वहाँ फ्लैट बनाए, तो फ्लैट मांग रहे हैं वहाँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 10 साल के बाद कब्रिस्तान के लोगों के लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर था, मेरे लिए वो तो आप निकाल ही सकते हैं। 10 साल के पहले वाले का प्रॉब्लम किस तरह से आइडेंटिफाई करना, क्या करना, वो सब करने में झगड़ रहे थे। और वो 10 साल के वो गएगा, पर उसको क्या करता है, मैं बहुत पुराना हूँ 1969 वाला, उसको आगे करूंगा 69 वाला हो गया, तू जाके आगे लड़ना, मैं तेरे पीछे पीट के खड़ा हूँ। ऐसा काम चल रहा है। या हमारे भाई सर्वे करने वाले, पूछो उनसे, सर्वे करने जाते हैं ना ये इमरान भाई, तो लोग उनको सर्वे करने के लिए इंफॉर्मेशन भी देते थे और अंदर घुसने भी देते थे। ये हालत है हमारी।